today's heading is math operations on constants and variables. आज का heading है math operations on constants and variables. Okay. Please write the heading in your book. Anyway, still, why don't you try solving it once again and quickly give me the answers. If you have done it before, that means आप लोग पहले कर चुके होंगे. So yeah, please go for it. Yeah, as you can see here, again, please write this down in your book. We solved it. 4 bananas. So we found 1 apple equal to 6. Then हमने bananas ढूंढा, 1 banana equal to 1. Remember, bunch नहीं देख रहे हम लोग, individual, single banana देख रहे. Cherry का pair नहीं देख रहे, एक cherry देख रहे. Okay, so 1 cherry equal to 1. And 2, 6, and यहाँ 3 bananas है. So obviously 1 banana 1 है, तो 3 bananas कितना होगा? 3. Answer is 11. That's it. इतना ही करना है आपको. We're going to quickly revise what are constants. Anyone wants to read? कोई पढ़ना चाहेगा? What are constants? Okay, I'll give chance to Palak. Yes, Palak, please read. Numbers that are written in equations of maths are called constants. Constants have fixed value. Constant means fixed. Example 12, 13, 5, 4, 6, minus 10, minus 20. Excellent, right? जो भी इक्वेशन में नंबर लिखे हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. ऑल नंबर्स, जो भी नंबर्स मिलेंगे आपको उनको बोलेंगे कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज देयर वैल्यू इज फिक्स्ड है ना. हर क्वेश्चन में उनका वैल्यू फिक्स्ड रहता है. 12 ही रहेगा, चाहे आप आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो या कभी भी पढ़. ओके, सो प्लीज क्विकली राइट दिस इन योर बुक. या कॉपी इट इन योर बुक प्लीज. We are revising variables. What are variables? Okay, yes, Diksha. We'll give Sadhika Siddhika a chance. I think last time Diksha read. Yes, Sadhika Siddhika, whoever wants to read. Lowercase small alphabets that are written in equation of math are called variables. Value of variable can change in different questions. Example A, T, and etc. Yeah, and other variables, right? कोई भी अल्फाबेट जो छोटा है, छोटा अल्फाबेट लिखा है इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट? दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. एंड ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होगी. ओके, एवरी क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होगी. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल. प्लीज राइट इट डाउन क्विकली. आई एम गिविंग 2 minutes, not more than that. Right, so this was variables. Again, I think ये भी हम पहले कर चुके हैं. Just wanted to quickly make you revise. We can only add, हम लोग always वही सेम चीजें ऐड कर सकते हैं ना. सेम, जैसे मैंगो ही ऐड करेंगे, गुआवा अलग रखेंगे, या फिर बैट ऐड करेंगे एंड बॉल हम लोग अलग रखेंगे. सिमिलरली हियर, राइट? अगर 3 बॉल है मतलब 3 balls, 3 triangles मतलब 3 triangles, और if there are T मतलब 3T. So quickly, can someone give the answers for this? I know we have already done this, but still a recap. Can anyone give the answer for the first one? I can see only 2 people giving the answer. It's not that difficult. इतना मुश्किल नहीं है ये वाला. बस अलग-अलग ऐड करने का है. Yeah, you just have to tell कितने balls है और कितने bat है. That's it. गिन के बताना. Okay. Yes. Let me give a chance to Asim. Asim. Okay. Ritu. भैया 2 balls and 3 bats. 2 balls, 3 bats, right? Pretty easy. कुछ इतना था नहीं इसमें. And similarly here, यहाँ पर mangoes कितने हैं? We will always take the mango separate and guava separate, है ना? भैया तुम्हारी आवाज अटक रही. Oh, okay. Anyone wants to give this one? Yes, भैया, can I tell? हाँ, tell. 2 mangoes and 3 guavas. 2 mangoes and 3 guavas. Okay, simple है, right? And similarly हम लोग जब variables के साथ काम कर रहे हैं उसमें भी यही होगा. 2x 3y. Okay, 2x plus 3y. 2x मतलब x कितने हैं? 2 है, और y कितने हैं? 3 है. That's it. इतना ही आपको समझना है. This is just for your understanding. Quickly note it down. Again, 2 more minutes and we will move ahead. In any equation, when you have all these things separated by plus, उनको क्या बोलते हैं? Terms बोलते हैं. What do we call them? Terms. Okay. 2x is a term, 3y is a term. अभी उसमें 2 पार्ट है. There are 2 parts in one term. What are the 2 parts? Variable and constant. क्या parts है? Variable है and constant है. Okay. So we will call the constant
यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, प्लीज लिसन केयरफुली, यहाँ कांस्टेंट 2 है. फ्रॉम नाउ ऑन इन अ टर्म, जब वो टर्म में होगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट. वी विल कॉल इट कोएफिशिएंट. ऑलराइट, एंड वेरिएबल को तो वेरिएबल ही बुलाएंगे. ऑलराइट, सो वी विल कॉल द टर्म एज कांस्टेंट, सॉरी विल कॉल द एंटायर थिंग एज टर्म. इस पूरी चीज को हम टर्म बोलेंगे. जैसे यहाँ पर 3t है, ओके, यहाँ पर 3y है, दैट विल बी अ टर्म. उसमें दो पार्ट होंगे, कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर है, कोएफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट है, एंड वेरिएबल. ऑलराइट, वेरी सिंपल. पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन को बोलेंगे टर्म. Constant is a part of a term which has a constant, sorry, coefficient is part of a term which has constant. Coefficient मतलब जो constant है, and variable of term, variable मतलब variable जो है वो term में, right? So इधर देखिए please, if you look at the first one or if you look at the second one, अगर आप दूसरा वाला देखते हो, please listen carefully again. This is the term -9 x square y cube. Okay, -9 x square y cube. What does this mean? -9 is the coefficient. -9 is the coefficient. जो constant है वो coefficient है. -9 की वैल्यू चेंज नहीं होगी. और वेरिएबल क्या क्या है? x वेरिएबल है और y वेरिएबल है. अब x कितनी बार है? x 2 times है and y 3 times है. Okay, that is important to remember here. यहाँ पर ये important है. So इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. We can write it like this also. -9 multiply by x multiply by multiply by x multiply by x, because x to the power 2, sorry, x to the power 2, and y multiply by y multiply by y. So x, y कितनी बार है? 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, x 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, that is why we have 2 and 3. but variables क्या क्या है? x है और y है. So that is why this is how you write it. Okay, please read this. If you have a doubt, ask, and if not, please copy it in your book. Here we have to remember कोई भी number, suppose let me take a number 10. Okay, so let me take a number 10. All right, so 10 multiply by 1 equal to क्या होगा? 10 multiply by 1 क्या होगा? Anyone? 10. Thank you. All right, let me take another number, 7654, and we will multiply this by 1. Oh, sorry, I'll put it here. Okay, yeah. What will be the answer? कोई बता सकता है? Easy. Yeah, 1 multiply by 7654. What will be the answer? 7654. 7654. Right? Simple, right? कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा. So we never write 1 multiply by anything. We just write the number. हम लोग ऐसा इतना बड़ा थोड़ी ना लिखते, हम लोग सिर्फ नंबर लिख देते, right? Similarly, वेरिएबल के लिए भी ऐसा ही है. वेरिएबल एक नंबर ही है जो हमें पता नहीं, right? So if I write x multiply by 1, suppose मैं x multiply by 1 लिखता हूँ, what will be the answer? x multiply by 1. कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 1 भैया. What? भैया x हमें तो पता नहीं है क्या है, तो इसलिए वेरिएबल X. Okay, so yeah, answer will be x. So answer will be x. कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई करो. If I multiply 1 multiply by, one more time I'm telling you. भैया सभी वेरिएबल की पावर है, पावर दिए हमें वेरिएबल. So x, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज रहेगी, right? So it will be the same. 1 multiply by u equal to u. कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो. ओके, सो a को भी 1 से मल्टीप्लाई किया गया, बट हम लोग हर बार 1 नहीं लिखेंगे. एफर्ट है ना, हर बार 1 लिखना एफर्ट है. सो वी वोंट राइट इट. सो हमें बस याद रखना है कि a को भी 1 से ही मल्टीप्लाई किया गया है. ओके, कमिंग टू ऋतु's क्वेश्चन. ऋतु आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन कि यहाँ पर x स्क्वायर है, y क्यूब है, मतलब x 2 बार है, y 3 बार है. तो हमें यहाँ वेरिएबल में नहीं बताना है कि x 2 बार है, y 3 बार है, नहीं, हमें बस वेरिएबल क्या है ये बताना है. सो इन दिस वन 9x स्क्वायर y क्यूब, इसका मतलब क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y. वी हैव दिस, ये पूरी, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? बट वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर? व्हाट आर द वेरिएबल्स? x इज अ वेरिएबल एंड y इज अ वेरिएबल. सो बस जो वेरिएबल है वही हमें बताना है. वी ऑलवेज हैव टू टेल व्हिच इज अ वेरिएबल. वी डोंट हैव टू टेल
oh, x square is the variable. X square is not the variable, x is the variable. Okay, स्क्वायर चेंज नहीं होगा, राइट? 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, x कुछ भी हो सकता है, x कैन बी 10, ओके, x कैन बी 10 और x कैन बी 6, हमें नहीं पता क्या है, बट वो जो स्क्वायर है वो चेंज नहीं हो रहा, सो वी वोंट राइट इट एज अ वेरिएबल. ओके, वो 2 तो 2 ही रहेगा, वो जो स्क्वायर का 2 है. इज दिस अंडरस्टूड? ओके, सो लेट मी पुट 10 ओवर हियर, यहाँ पर 10 लिख देता हूँ. ओके, सो टर्म आपका है 10, तो कोएफिशिएंट क्या है इसमें? कोएफिशिएंट मतलब नंबर, कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट. तो यहाँ पर क्या है? नंबर क्या है? हाँ, क्या है नंबर? 10. 10 है. 10 है 10. बस, 10 है बस, ओनली 10. ओके, हाँ. वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर? नो. नो, नहीं है. यस, ए. तो अरे कहाँ क्या है? है ये नीचे वाला? नो. या नहीं है तो बस हमने नहीं लिखना है वेरिएबल. इफ देयर इज नो वेरिएबल यू डोंट राइट इट, लिखना ही नहीं आपको, सिंपल है. यहाँ पर वेरिएबल है 5/6 p, हाँ है, p है वेरिएबल, कोएफिशिएंट है, यस 5/6. यस, भैया मतलब ना हमें एग्जाम में एक टेबल बनकर आएगा और हमें वेरिएबल बोले तो वेरिएबल और नंबर साथ में लिख के आएंगे. हमें वेरिएबल अलग बॉक्स में लिखना है और नंबर अलग बॉक्स में, है ना? यस, नंबर को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट बोलेंगे, नंबर को बोलेंगे कोएफिशिएंट. ओके, यस, एंड आपको बस यही करना है, टर्म दी होगी आपको और आपको बताना कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है. और भैया उधर 1 क्या आया वो भी समझा, क्योंकि ए है और ए की 6 करके उधर 1 आया है ना? यस, एग्जैक्टली. यहाँ पर x स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पर x स्क्वायर वाई क्यूब कितने हैं? -9 है. यहाँ पर m और n कितने हैं? mn कितने हैं? 11 है, इसीलिए वहां पर 11 आया, बस ऐसा ही है. a कितना? 1 है, सो 1 आया. तो सपोज मैं यहाँ पर p लिखता हूँ, इफ आई राइट ptx, ओके, सपोज मैं यहाँ पर ptx लिखता हूँ. ओके, सो कोएफिशिएंट क्या होगा इसका? कितने हैं ptx कितने हैं? 1. सो कोएफिशिएंट 1. एक ही ptx है ना वहां पर, और 5-6 दिखाई दे रहा? नहीं, एक ही दिखाई दे रहा. और वेरिएबल क्या क्या है इधर? व्हाट आर द वेरिएबल्स? P, T and X. P, X. x, 3 वेरिएबल है, बस, दैट्स इट. इतना ही करना. हाँ भैया समझ गए, आप आगे बढ़ो. ऑलराइट, cool. So we will, please write this down in your book, है ना? Please write it down in your book. Yes. And yeah, you can write down the other examples also. Done भैया. बाकी एग्जाम्पल पूछे थे Done भैया. 10 का. ओके, 10 का एग्जाम्पल लिख लीजिए कि अगर सिर्फ 10 या कोई नंबर आ गया तो क्या लिखेंगे. भैया यस, फिर हमें इसके बाद और है. yes, but we will stop for today. I will give you this one question here and then हम लोग rules कल continue करेंगे, okay? Because Okay. yeah, 1 hour is up and I have to go for that meeting. So तो we हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. I will put the question next soon. Please copy this table in your book. 2-3 ऐड कर रहा हूँ जैसे आपने यहाँ पर बोला था. Yes. भैया आप सिलेबस कब भेजेंगे फाइनल एग्जाम्स के? फाइनल एग्जाम का पहले ये महीना तो खत्म होने दो. Let this month get over and then I will send the syllabus, okay? भैया रितु को आपने सेंड करे ना? उसको मैंने बस ये भेजा. 1 second. Please solve this. b equal to 5. तो b square क्या है, b cube क्या है, 2b क्या है, 3b क्या है. Okay, please solve it.